मॉर्निंग गाइस, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास के लेक्चर में हमारा चैप्टर चल रहा है पीरियोडिक कैरेक्टर्स। सीक्वेंस के हिसाब से थर्ड चैप्टर था। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और इसके अलावा लूथरमेयर के कर्व देखा है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर बेसिकली वी हैव सीन दैट द पीरियोडिक टेबल हैव 7 horizontal lines while as the 8 vertical lines. It is divided into 57 parts in which horizontal lines show the periods while the vertical lines show groups. This periodic table is arranged according to the atomic mass. Means the periodic character of the atomic particles or elements are the periodic function of their atomic mass. He arranged all elements in increasing order of atomic mass. Most of the elements have classified by this theory, but all elements can't be arranged according to this function. We saw the most of elements are classified as properly, but there are no proper arrangement of isotopes and no particular values for the hydrogen atom, while he can't explain about the separation of lanthanides and actinides from the group 6 and 7. He also give the name for the particular period, while as the smallest period, small period, long period, longest period, and the incomplete periods. Some elements are found which have the lower mass, but they arrange after the heavier mass element. So due to some variations, all elements can't be arranged according to this manner, because the base of periodicity or the base of periodic function was not appropriate, because all elements can't be defined according to the atomic mass units, because the all properties does not depends on atomic mass, while they depends on various properties. This theory was failed because it was given before the discovery of subatomic particles like proton, electron, neutron. Before this, atom is considered as the undividable unit. We can say in this series today we will discuss the modern periodic law and modern periodic table. The basic question is the father of periodic table, then the Mendeleev. Who is the father of modern periodic table? Then Henry Moseley. Because periodic table was based on atomic mass, and modern periodic table was based on atomic number. That was the based concept which is given by Henry Moseley. And it is also the main function of periodic table, and due to this we can arrange the all elements according to their physical and chemical properties. In 1913, Henry Moseley proposed the modern periodic table by X-ray diffraction spectrum theories. सबसे पहली बात आती है एक्सरे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रम थ्योरीज। क्या होती हैं? कोई भी एलिमेंट है जिसके ऊपर एक्सरे जो होती है उनको क्या करते हैं, एक्सरेज को डाला जाता है और उसका एक स्पेक्ट्रम लिया जाता है। उस स्पेक्ट्रम के बेसिस पे वो जो फोटोसेंसिटाइजर सब्सटेंस है उसके ऊपर किस तरीके के पैटर्न ड्रॉ होते हैं, जिस तरीके के पैटर्न्स उसके अंदर ड्रॉ होते हैं उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि उसके बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर किस तरीके की स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो पर्टिकुलर एक्सरे डिफ्रैक्शन थ्योरी के बेसिस पे एलिमेंट्स जो है उनकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया गया और उसके बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करा। ठीक है, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रम थ्योरी से बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टडी किया गया था। अकॉर्डिंग टू मोज़ले, व्हेन we draw a graph between atomic number and frequency of the X-rays, he plot a graph between X-ray frequency of waves and atomic number. इसका मतलब ये है कि उसने कोरिलेट किया था फ्रिक्वेंसी को किसके साथ में, एटॉमिक नंबर के साथ में कोरिलेट किया था। उसके अकॉर्डिंग जो एटॉमिक नंबर है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है ना। एटॉमिक नंबर फ्रिक्वेंटली चेंज होता है किसके साथ में, फ्रिक्वेंटली चेंज होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो जब हम इट गिव्स द रिलेशन अबाउट द एटॉमिक नंबर दैट इज डिनोटेड बाय Z एंड फ्रीक्वेंसी विच इज डिनोटेड बाय म्यू। ओके,
तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसके अंदर ये आता है कि एटॉमिक नंबर के साथ में जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ में एटॉमिक नंबर भी चेंज होता है। कोई भी एलिमेंट है उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के साथ में ड्रॉ करते टाइम हम देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लाइन मिलती है जो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलती है। उसके बेसिस पे उन्होंने एक रिलेशन दिया था, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर which is given by if the frequency of any wave is denoted by mu and the atomic number is denoted by z. Here b is a constant which correlate the atomic number to the frequency. Okay, then he proposed a relation under root mu directly proportional to z minus b, means atomic with the change in atomic number the frequency will be changes, or other words we can say that when we read the chemical and physical property with the atomic number it will be frequently changed, means the frequency is directly proportional to the atomic number. ठीक है, रिलेशन ध्यान रखना है, अंडर रूट म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z माइनस बी. हियर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, z इज द एटॉमिक नंबर, b इज द कांस्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रोपोर्शनल रिलेशन को इक्वल में लेके आना चाहेंगे तो हमको क्या चाहिएगा, एक कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है. अंडर रूट म्यू इक्वल्स a z माइनस b. हियर a इज ऑल्सो कांस्टेंट एंड b इज ऑल्सो कांस्टेंट. अकॉर्डिंग टू मोजले एलिमेंट्स आर पीरियोडिक कैरेक्टर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट यही थी कि एटॉमिक नंबर को उसने क्या लिया था, बेस लिया था, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन किया था. या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं मोजले क्लासीफाई या मोजले अरेंज द ऑल एलिमेंट्स ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, या फिर एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, की सारे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर उसको अरेंज किया गया था, जो उसका बेस. ठीक है, तो और ये जो म्यू लिया है ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था. जबकि जो मेंडली पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर उसने बेस क्या ले लिया था, उसने बेस लिया था एटॉमिक मास, जो उसका सबसे रॉन्ग डिसीजन था बेटा. ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फादर कौन है, हेनरी मोजले. जबकि पीरियोडिक टेबल के फादर कौन है, मेंडलीव है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर व्हाइल द periodic table was based on atomic mass. According to modern periodic table या फिर according to Henry Moseley, elements are the periodic function of their atomic number. Means we can say that elements are arranged according to increasing order of their atomic number. He proposed the relation under root mu directly proportional to z minus b. Here b is the constant while z is the atomic number. If we rearrange this relation, then we obtain that under root mu equals a into z minus b. Here a and b are constant. Simply we can say that according to Moseley, elements are the periodic character of their atomic number. ठीक है, दिस पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन ऑफ प्रिंसिपल. किसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अकॉर्डिंग भरे जाएंगे, ओक्बो प्रिंसिपल. इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे बेस्ड थी, इसलिए इसको बोरबरी स्कीम भी बोलते हैं, है ना. नील्स बोर ने दी थी स्कीम किसकी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, और उसके साथ दूसरा साइंटिस्ट था बरी, तो इसको बोरबरी स्कीम भी बोलते हैं. लेकिन आपको इतना नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन ऑब्बो प्रिंसिपल. In 1984, according to IUPAC, long periodic table was classified into A and B subgroups. हाँ, periodic table जो थी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. उसका हाफ पार्ट A था और हाफ पार्ट क्या था, B था. उसके अंदर टोटल जो ग्रुप्स के नंबर थे वो 8 ही रखे थे. 8 ग्रुप्स के अंदर क्या रखा था, 8A 1 to लेकर के 8 तक का, है ना. 1 to 8A, 1A 1 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A. फिर सेकंड B, सेकंड है ना, फर्स्ट A B, सेकंड B, थर्ड B, फोर्थ B, इस तरीके से 8th B तक. यानी 1 to 8 तक की काउंटिंग A के साथ में और 1 to 8 तक की काउंटिंग किसके साथ थी, B के साथ थी. इसमें इसके अंदर क्लासिफिकेशन किया गया था टोटल. इस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, ए और बी के अंदर सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड थी. देर आर बेसिकली 8 ग्रुप्स आर प्रेजेंट थे. बेसिकली काउंटिंग कहाँ तक थी, 8 तक थी, जिसके अंदर ए बी इस तरीके से रखा गया था. और कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जिनके अंदर सेम प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से उसको एक से ज़्यादा ग्रुप्स को उसके साथ में एक साथ रखा था.
इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नंबरिंग वाज केप्ट फ्रॉम 1 to 18। अब जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, है ना, उस कन्फ्यूज़न को फर्स्ट ए है, सेकेंड ए है, थर्ड ए, इस तरीके से उसको दूर करने के लिए उसके अंदर क्या रखा था, काउंटिंग 1 से लेकर के 18 तक स्टार्ट करी गई थी। उसमें फर्स्ट ए, सेकेंड ए, इस तरीके का कुछ नहीं था। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहाँ से शुरू है, फर्स्ट ए से लेकर के 18 तक की स्टार्ट है। ठीक है, ग्रुप कहाँ से है, 1 से लेकर के 18 तक, इसका मतलब फर्स्ट लाइन को 1 2 3 4 5 इस तरीके से। फर्स्ट लाइन जो थी उसको क्या बोला था, एल्कली मेटल्स बोला है। सेकंड ए को एल्कली अर्थ मेटल्स बोला है। ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक को फर्स्ट ए को क्या, एल्कली मेटल्स, सेकंड को एल्कली अर्थ मेटल्स। फ्रॉम ग्रुप 3 to 12, है ना, 3 से लेकर के 12 तक को, है ना, 3 to 12 को, 3 से लेकर के 12 तक को क्या रखा था, ट्रांजिशन मेटल्स रखा था, है ना, ट्रांजिशन मेटल्स रखा था। और नेक्स्ट जो थी ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक के थे, उसके अंदर क्या था, 13 14 15 16 जो थे उसके अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते थे। ग्रुप जो 18 आता है उसको इनर्ट गैसेस बोला जाता है या नोबल गैसेस बोला जाता है, सबसे इनर्ट गैसेस होती हैं ये। ठीक है ना, तो मॉडर्न पीरियोडिक स्टार्टिंग के अंदर तो 1 से 8 ए बी इस तरीके से कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए 1 to 18 रख दिया। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस, सॉरी वर्टिकल जो लाइंस होती है, खड़ी जो लाइंस होती है, उनका नंबर 18 है। इसका मतलब ग्रुप्स कितने हैं, 18 है, और पीरियड्स कितने हैं, 7 है। लास्ट जो मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसमें पीरियड्स का नंबर तो 7 था, लेकिन ग्रुप्स का नंबर उसने कितना रखा था, 8 ही रखा था। उसने 8 के अंदर ही एक ही ग्रुप को ए और बी में डिवाइड किया था, वो अलग से उसको सेपरेट नहीं कर पाया था, जबकि इसने क्या किया, उसका कंप्लीटली क्लासिफिकेशन दे दिया आगे। वही बात है ग्रुप ए के अंदर 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है, 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है। ग्रुप 2 and 3 के अंदर 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। 4th 5th के अंदर 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ग्रुप 6 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 32 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, है ना, 32 एलिमेंट्स। और ग्रुप 7 जो है वो अभी भी इनकम्प्लीट है ना। फिर इसके अंदर जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं, है ना, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है वो सेपरेट हैं, कहाँ से, ग्रुप 6 से और ग्रुप 7 से। ग्रुप 6 से किसको हटाया है, लेंथेनाइड्स को, और ग्रुप 8 से किसको हटाया है, एक्टिनाइड्स को। ठीक है ना, ये बिल्कुल सेम था। इसकी जो शेप थी, है ना, इसकी शेप थी वो किस तरीके से रखी थी, इस तरीके से कुछ। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर इधर भी एक एलिमेंट है, इधर भी एक एलिमेंट प्रेजेंट है। फर्स्ट ए जो भी है उसके अंदर 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों के पास में ये जो ग्रुप है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो इधर वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे एस ब्लॉक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का है, इसके अंदर आएंगे फर्स्ट और सेकंड। यहाँ से काउंटिंग आएगी 3 से लेकर के कहाँ तक की आएगी, 12 तक की आएगी। ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक की 10 ग्रुप्स आएंगे उसमें। उनको किस में इंक्लूड करते हैं अपन, डी ब्लॉक के अंदर इंक्लूड करते हैं। ग्रुप 3 to 12 आर इंक्लूडेड इन डी ब्लॉक। और फिर आती है 12 के बाद में आएंगे 13 to लेकर के 18 तक के 6 जो पीरियड्स हैं वो किस में आएंगे, पी ब्लॉक के अंदर आएंगे। तो पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, और इसके अंदर क्या आएगा, एफ ब्लॉक आएगा। एफ ब्लॉक के 2 पार्ट्स हैं, एक है लेंथेनाइड और दूसरा क्या है, एक्टिनॉइड्स है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल मिलकर के हो गए एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर एस ब्लॉक आएगा। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आएंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट ग्रुप को हमने बोला है एल्कली मेटल्स और इसको बोला है एल्कली अर्थ मेटल्स, है ना। हालांकि मैं इसको बुक से एक्सप्लेन करूँगी, एक बार आप फॉर्मेट देखें इसका। ठीक है, यहाँ पे आएगी ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक की 10 ग्रुप्स इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। 10 ग्रुप आएंगे, उसको अपन बोलते हैं डी ब्लॉक। सारी की सारी जो एलिमेंट्स है वो मेटल है और उनके अंदर सेम प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए उसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक के, है ना, 13 से लेकर के 18 तक के जो ग्रुप्स है वो किस में आते हैं, है ना, 13 से लेकर के 18 तक होते हैं। 13 से लेकर के जो 18 तक के ग्रुप होते हैं, है ना, 13 to 18 जो ग्रुप्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक होते हैं। और यहाँ पे आएंगे एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के अंदर कितने होते हैं, 14 एलिमेंट होते हैं ऊपर वाली लाइन में, 14 एलिमेंट होते हैं नीचे वाली लाइन में। जो ऊपर वाली लाइन के 14 एलिमेंट होते हैं वो लेंथेनम से स्टार्ट होते हैं, लेंथेनम की जस्ट बाद में आते हैं, इसलिए उसको हम लेंथेनाइड्स बोलते हैं। और नीचे वाले जो 14 एलिमेंट्स हैं वो एक्टिनॉइड के बाद में स्टार्ट होते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स।
एक्टिनम के बाद में इसलिए एक्टिनॉइड्स, इसके अंदर लेंथेनॉइड के बाद में लेंथेनॉइड्स। ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक के होते हैं ना, उनके अलग अलग नाम होते हैं, वो अपने पीरियड के हिसाब से पढ़ेंगे। फर्स्ट ए, सेकंड ए, यहाँ पे थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, इस तरीके से सेवन्थ ए, एट्थ ए आता है, उसके अंदर 10, 11, 12 ग्रुप आता है। उसके बाद में आता है फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से थर्ड बी से स्टार्ट होता है, एट्थ बी तक का आता है ना। थर्ड बी से लेकर के एट्थ बी तक का पार्ट आता है, जिसको अपन पी ब्लॉक के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो पहले आधा पार्ट किस में था, ए में, आधा पार्ट किस में था, बी के अंदर था। आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर ए बी पार्ट नहीं होते, उसके अंदर सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से लेकर के 12 तक, देन 3 से लेकर के 18 तक। तो जो भी क्लासिफिकेशन है आपको दोनों ध्यान रखने हैं, फर्स्ट से 18 तक किस तरीके से रखना है, और फर्स्ट ए, सेकेंड ए इस तरीके से किस तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ए, फर्स्ट सेकेंड ए यहाँ है, यहाँ पे फर्स्ट बी, सेकंड बी यहाँ से थर्ड बी स्टार्ट होता है, यहाँ से थर्ड ए स्टार्ट होता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का जो बेस आएगा उसके साथ देखेंगे अपन उसको। एफ ब्लॉक बिल्कुल ठीक है, एफ ब्लॉक को बाहर की तरफ सेपरेट किया गया है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के अंदर। ये जो पूरी पीरियोडिक टेबल थी वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे बेस्ड होती है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे 1 से लेकर के 7 तक चलता है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 to 7 होता है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे बेस्ड होती है ये चीज़ें। यहाँ पे एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबको मैनेज किया है। आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अप्रॉक्स 120 से ज़्यादा भी एलिमेंट्स को रखने की कैपेसिटी प्रेजेंट है, ठीक है। आज की इस लेक्चर के अंदर अपन ये देखा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, हेनरी मोजले ने क्या कॉन्सेप्ट दी थी, आपको ध्यान रखना है ये रिलेशन। इसके बाद में इस रिलेशन को इक्वल भी कन्वर्ट किया है। ये लाइन आपको बिल्कुल याद रखनी है, हेनरी मोजले की ये बेस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थी। कुछ बेसिक चीज़ें देखी हैं अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए कि उसने किस किस तरीके से इनको क्लासीफाई किया और किस तरीके से उसको डिवाइड किया। उसके बाद अपन ने देखा है कि उसका नया फॉर्मेट क्या है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एग्जैक्टली बनी हुई पीरियोडिक टेबल देखेंगे, जिसमें मैं कई सारे फंक्शंस आपको बताऊँगी, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। 11th क्लास के बच्चे स्पेशली ध्यान दें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। और नोट्स, अप्रोप्रिएट नोट्स बनाते रहे बेटा। थैंक्स।